Hello everyone. Again, welcome to my Aeon classes, the traditional way of learning. Today, we have discussed about the sign convention. We have discussed about the mirror formula and terms related to the mirror formula. Let's start with sign convention in spherical mirrors. First of all, what is the sign convention? Sign convention means the technique by which we have to use the sign plus positive, negative of the values which we put during the numerical problems. ये solving the numerical problems. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जो साइन को हम यूज करेंगे, मे बी इट पॉजिटिव, मे बी इट नेगेटिव, these signs are called as the sign convention values, and how we put it during the numerical problems of the spherical mirrors. First, we have discussed about the some terms which is used during the numerical problems are like as terms used in spherical mirrors. For example, A. Distance of object from mirror or pole. Distance of object from mirror or pole is given by u. That is called initial distance or u. But distance of object कितनी दूरी पे रखा गया है, किससे? मिरर से. B. Distance of image from mirror or pole is called V. U is denoted for the distance of object from mirror. V is denoted for the distance of image from mirror. C. Focal length. Focal length. Focal length is denoted by, as usual, small f. It is the half distance of the radius of curvature, that is r by 2. Sometimes we have to put some values of the radius of curvature. Radius of curvature, which is denoted by capital R. So these values are used during the solving the problems related to the spherical mirrors. Height of object की height कितनी है? It is denoted by h. Sometimes it is denoted by ho. In some books we have to write it ho for object, height of object, and some here there is only h. F. Height of image. Height of image, that is denoted by h dash or hi. If it is denoted by h dash or hi. अगर मैं सिर्फ h यूज करता हूँ ऑब्जेक्ट के लिए तो देन आई यूज द h डैश, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए h o यूज करता हूँ तो इमेज के लिए h i यूज करूँ. नाउ g, that is magnification. Magnification gives the idea of the height of the image in the ratio of the object height. और क्या कहते हैं? It gives the times. It gives the multiplication. Maybe it negative multiplication or positive multiplication. Maybe it increase or decrease way. So magnification is the
रेशियो ऑफ द इमेजेस और ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट के बीच का जो रेशियो है उसको डिनोट करता है मैग्निफिकेशन। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस ऐसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है and denoted by the m. These are the some values which we use during the solving the problems of the spherical mirrors, the numerical problems of based on the spherical mirrors. Then now the second point, second topic under the sign convention, the what sign are used during the numerical problems according to the spherical mirrors, maybe it concave or convex. So first of all we divide the convex and concave according to the coordinates. Coordinates के according मैं इनको divide कर देता हूँ. How? Let's see. These are the terms. Now rub it. I make a coordinates. X-axis, Y-axis and Z-axis. These are the coordinates. This is Y-axis. This is minus Y-axis. This is plus X-axis. And this is negative x axis. So they are the four coordinates as we know in mathematically or mathematics. Here positive, opposite to it negative, here positive, then it is negative. This coordinate is for negative, this coordinate is positive negative, this coordinate is positive, this coordinate is again positive negative. Then how we use these coordinates in the sign convention? If there is a lenses, अगर यहाँ पे not lenses, अगर यहाँ पे mirrors रखे हो तो mirrors are put it here. If I make the mirror like that, one mirror like that and one mirror like that, this mirror show the convex part, so this is convex, and this mirror show concave. There are two ways, concave and convex. So I divide the graph into the two parts, concave and convex. Then how the sign convention is used in, देखो concave हो convex हो तो सबके अंदर वही टर्म्स यूज आती है, u, v, h, h dash, m, r, f. As we know that making the diagram we use the position of the object. Object की क्या position होती है? It is maybe in above the object की always on the axis or always on the principal axis. Image की position may be on the principal axis or below the principal axis. तो this x axis act like a principal axis. यहाँ पे x axis है वो किसकी तरह यूज आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह यूज आ रहा है. तो यहाँ के ऊपर देखो हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है. ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर डायग्राम. तो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट्स है वो यही है. फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज पुट on left hand side so here we have noticed, we write down that object always put on left hand side of mirror. मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है. तो द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी किसी भी चीज की, तो लेफ्ट हैंड साइड रखा है
तो u हियर देखो मैं इधर की साइड लिख रहा हूं, कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है, तो फर्स्ट पॉइंट u इज ऑलवेज नेगेटिव। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। हियर इज ऑल्सो u इज ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा क्या है? नेगेटिव रहता है। क्लियर? u इज ऑलवेज नेगेटिव दोनों में, मे बी इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? माइनस एक्स एक्सिस है, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। सेकेंड थिंग, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से या पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या है? देखो इसके अंदर फिर दो बातें होती हैं। फर्स्ट थिंग, अगर वो पॉजिटिव है, सॉरी अगर वो नेगेटिव है तो इसके अंदर हमने केस पढ़े थे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के अंदर हमने पढ़े थे बाय द स्फेरिकल मिरर्स और कर्व मिरर्स। तो ये पढ़े थे कि जो इमेज है अगर लेफ्ट साइड बनती है तो हमें देखना इसके अंदर तो लेफ्ट साइड बनती है और इसके अंदर हमेशा राइट साइड बनती है। कॉनकेव में हमेशा लेफ्ट साइड बनती है और कॉन्वेक्स में हमेशा राइट साइड बनती है। तो कॉनकेव के अंदर 1 to 5 केसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो नेगेटिव रहेगी फर्स्ट टू फिफ्थ केस तक और पॉजिटिव रहेगी सिक्स्थ केस में। फॉर्मेशन ऑफ इमेज के केस है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो नेगेटिव रहती है हमेशा फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स्थ रहती है आपके पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ में मतलब है कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, रियल एंड इन्वर्टेड। मींस जब भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी किसके अंदर? मिरर के अंदर। कर्व स्फेरिकल मिरर्स में जब भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब सिक्स केस का, तो कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज फॉर V। क्लियर? नाउ कम टू हियर सेकंड पॉइंट। इसके लिए V की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, यो इनसाइड द मिरर, यो बिहाइंड द मिरर। तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बन रही है, देन इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो these are the points for distance of object और distance of image from the mirror। मिरर से इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं साइन कौन कौन से यूज करता हूं? तो U के लिए हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा, चाहे वो कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, और V के लिए पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा जब तक रियल और इन्वर्टेड बन रही है, और पॉजिटिव रहेगा जब तक वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्वेश्चन के अंदर हम लोग हमेशा U की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है। अगर हमको वैल्यू नहीं दी गई है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया गया, तब भी हम लोग उसकी वैल्यू को नेगेटिव ही पुट करेंगे। U इज इक्वल टू, सपोज द डिस्टेंस इज गिवन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो देयर इज नो एनी साइन यूज्ड, तो वी हैव ऑलवेज राइट U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, द थर्ड पॉइंट, हाइट। अब हाइट को हम लोग यूज करते हैं h से। किसे यूज करते हैं? h से। h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो ऊपर की तरफ होती है, चाहे वो कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, मतलब हमेशा y एक्सिस की तरफ ही होती है और अबव द
प्रिंसिपल एक्सिस हम उसको रखते हैं। तो इफ द हाइट, ये हाइट है मान लो ऑब्जेक्ट की, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इसकी हाइट क्या है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, इट इज ऑलवेज टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। तो जैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑलवेज, चाहे वो कॉनकेव केस हो चाहे वो कॉन्वेक्स केस हो। थर्ड केस h, height of the object, positive always, clear। now next is height of the image, that is h dash। अब इसके अंदर भी दो केस होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर h डैश इमेज की हाइट, क्या कह सकते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज है, हाइट वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, किसकी तरफ, beneath, नीचे की तरफ, किसके नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। तो दिस इज B, दिस इज A, तो ये इमेज के लिए है, तो ये डाउनवर्ड है। और अगर यही ऊपर की तरफ होती है, B डैश A डैश हम लोग ले रहे हैं इमेज के लिए, दिस इज फॉर इमेज। अगर नीचे की तरफ बनती है, मीन्स इट इज द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिविटी ये बता रहा है कि ये कैसी है, ये नहीं बताता कि हाइट छोटी है बड़ी, नेगेटिविटी बताता है कि वो रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल इजेक्ट। अगर नीचे की तरफ बन रही है तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ये केस कौन सा रहेगा, फर्स्ट टू फिफ्थ केस तक। केस वही है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी एट इंफिनिटी, बियॉन्ड द सी, थर्ड नंबर का एट सी, फोर्थ नंबर का बिटवीन सी एंड एफ, एंड फिफ्थ नंबर का एट एफ। दीज आर द केसेस, रियल एंड इन्वर्टेड। और वहीं मैं बात करता हूं एच डैश की दूसरे पॉइंट की, दैट इज पॉजिटिव। तो एक चांस ऐसा आता है जब सिक्स केस में, जब इमेज जो है वो ऐसे बनती है, किसमें, कॉनकेव में। कॉनकेव में इमेज जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, so that case is also called virtual and erect। तो ध्यान रखना, जब वर्चुअल इरेक्ट बनती है तो h डैश की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और रियल और इन्वर्टेड बनती है तो h डैश की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो रियल और इन्वर्टेड में हमेशा h की या v की वैल्यू नेगेटिव रहती है, और वर्चुअल इरेक्ट में v की और h डैश की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज हमेशा ऊपर की तरफ बनती है, that's why h dash is always positive। So these are the some points by which we can say that the image the sign are used for the solving the problems को solve करना। अब ये तो हो गया मेन u, v, h और h dash। अब कुछ वैल्यूज बची, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ r और f के लिए। अगर मैं इसमें r और f की बात करता हूँ, 50 पॉइंट लेता हूँ r और 6 पॉइंट लेता हूँ f के लिए, तो एक चीज नोट करना कि r और f उस डायरेक्शन को ले जाता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। We have to use the values of r, f and f, या measure the measurement, या take the measurement of the side where the image is formed, not object, image is formed। जहाँ पे image formed होती है, जिस डायरेक्शन में image form होती है, उसी डायरेक्शन में हम लोग r और f की वैल्यू को यूज करते हैं। अगर r की वैल्यू पॉजिटिव, r हमेशा देखो इसके अंदर इमेज जो होती है वही चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो r की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाएगी, नेगेटिव ही रखी जाएगी, चाहे वो वर्चुअल बन रही है चाहे वो इरेक्ट बन रही है, देन इट इज नेगेटिव। f की वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव। वो बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव नेगेटिव साइन
फॉर द रियल एंड इन्वर्टेड, वो ऑटोमेटिकली ही अपना आंसर पॉजिटिव नेगेटिव वे में दे देता है। बट आर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी और एफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। सिमिलरली फॉर द कॉन्वेक्स, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और एफ की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो दीज आर द सम पॉइंट्स या सम साइन कन्वेंशन वैल्यूज which we use during the solving the problems of the या numerical problems based on the spherical mirrors. Clear? Okay. May I rub it? Now there is one part is left, that is magnification. Then what about the magnification? As I discussed previously, as I discussed, the magnification is the value या ratio of the distance of the object। वह भी समझ लेना, जो मैग्निफिकेशन है, चलो इसको अपन मैं उसके साथ यूज करता हूँ या फिर जब अपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ उसके साथ मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला। So what is mirror formula? Mirror formula actually a formula which give the idea of the relationship between the distance of the object from the mirror, distance of the image from the mirror and the focal length of the mirror. It is a relationship. तो हम नॉर्मली कह सकते हैं रिलेशनशिप है। क्या है मिरर फॉर्मूला? क्या है? रिलेशनशिप। It is a relationship between U, V and F, relationship between R, U, V, F, H, H dash and M. The terms that we use during the study of the sign conventions or during the study of the sign values R, U, V, F, H, H dash and M. These are the values. इन सब के बीच में जो रिलेशन है उसको कौन बताता है? मिरर फॉर्मूला बताता है। और किस तरह से बताता है? देखो ये सब चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग, it is the reciprocal sum of the distance of object from the mirror and distance of image from the mirror। क्या है? रेसिप्रोकल सम है। तो हम लिख सकते हैं it is the reciprocal sum of the distance of object from mirror and distance of image from mirror। मिरर मीन्स पोल भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई डिस्टेंस लेते हैं, स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हैं, मिरर कर्व भी हो सकता है, बट वी टेक द पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू इमेज, बट वी हैव टू राइट इट हियर मिरर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
इट इज द रेसिप्रोकल सम। तो सेकंड जो डेफिनेशन, सो सेकंड जो पॉइंट आता है इसके अंदर नेक्स्ट, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है ये? फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो मैथमेटिकली it will be written as 1 upon f. This is the reciprocal of focal length 1 upon f is equal to the 1 upon u, not u, v. 1 upon v plus 1 upon u. देखो यहाँ पे f आ गया, u आ गया, v आ गया, तीन चीजें आ चुकी हैं कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर और कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर. तो दिस इज ए मिरर फॉर्मूला. अब ये मिरर फॉर्मूला है, इसके साथ u, h, h डैश, m किस तरह जुड़े हुए हैं वो देखते हैं. तो फॉर हाइट या कह सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसके अंदर वो आएगा मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m. किसे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल m. अब इसका और मैग्निफिकेशन का क्या रेशियो? देखो मैग्निफिकेशन जो होता है वो इट इज द रेशियो ऑफ द, देखो दो चीजों का होता है मैग्निफिकेशन. m इज इक्वल टू, रेशियो है, किसका रेशियो है? दो चीजों का. पहला है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. किसका डिस्टेंस है? मिरर का डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. और सेकंड है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. क्लियर? तो मैग्निफिकेशन इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. इट इज ए रेशियो. So we can say that it is a ratio of the distance of object from image from mirror and distance of object from mirror, that is, and it is a negative, in the negative form. So negative v upon u. Clear? Similarly m is equal to also, m है किसके बराबर है? It is not negative, but it is the height of image upon height of object. Height of image is equal to height of object. इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसको भी मैग्निफिकेशन कहा जाता है. देन व्हाट फॉर्मूला इज मेड बाय इट? इससे कौन सा फॉर्मूला बनेगा? तो आई हैव रिटन इट हियर, दैट इज, इसको मैं अगर सिंबल फॉर्म में लिखता हूं, इन सिंबलिक फॉर्म, दैट इज रिटन एज h डैश अपॉन h. नाउ कंबाइन द बोथ, m m दोनों सेम है तो दोनों कंबाइन कर सकते हैं. तो वी हैव टू राइट इट लाइक दैट, m इज इक्वल टू m is equal to minus v upon u equal to h dash upon h. Again minus v upon u is equal to h dash upon h. So this is the magnification formula for the solving the ratio between the object and the image, maybe in the form of distance or maybe in the form of their height. Clear? So here we have to discuss about the mirror formula. What is the mirror formula?
And what is the relationship between the R, U, V, F, H, H dash and M? इधर R की बात करता हूं तो F की वैल्यू R/2 होती है, तो we have to put the F is equal to R/2, तो 2/R भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं R के साथ रिलेशनशिप बनाता हूं तो 1/F को लिख सकता हूं मैं 1/R/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/R is equal to 1/V plus 1/U. In this way I have to change the different forms. Clear? You have noticed that? You have to see that today we have to discuss about the sign convention, mirror formula, and the values of the values used during the solving the numerical problems of the mirror, related to the mirror, spherical mirrors, and their sign, which sign is used during the numericals. Clear? So here the topic of the reflection till the mirror formula is completed. In next video I start the topic with the refraction. Okay, and the applications of refraction and their image formation and the ratios, that is the refractive index, the velocity of light, we have to discuss in my next video. Okay, goodbye and take care.